all of you. Today's lecture is very important because we learn about the English language study in previous lecture, but not complete all topics. So today we want to take some very important topic as like direct and indirect speech in the language study. Before I want to say, in the language study, question number first A part for 4 marks and question number first second 4 marks. That type of question asks for 8 marks. First important thing. Second important thing, all those topic, mostly topic included in the passage system. लैंग्वेज स्टडी में जो टॉपिक मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ उसमें से मोस्टली टॉपिक आपको पैसेज के ऊपर भी पूछे जाने वाले। सो इस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी लर्न अबाउट डिग्री, टुडे वी लर्न अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बिफोर आई वांट टू से, in language study, write the compound words of the your own. This topic completed in previous lecture. Whatever topic completed in previous lecture, first word, the compound words of your own. Second, pick out infinitive, joy and participle. Third, we completed punctuation. 4, find out hidden word from given word. शब्द दिया उससे hidden word. This topic completed in previous lecture. Make meaningful sentence by given phrase. This topic completed to previous lecture. Similarly, spot the error and rewrite the correct sentence. This topic completed in previous lecture. Identify the types of sentence. This topic completed in previous lecture. Complete the word change. This topic completed in previous lecture. But whenever, whatever doubt creating in your mind, you can ask to me about any topic. एनी टाइम। जब आपको ये सभी टॉपिक के बारे में जो टॉपिक समझ लेना है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मगर इसके पहले जो लेक्चर्स किया, वीडियो बनाया था मैंने, इसमें ये इतने टॉपिक्स क्या हुए, कंप्लीट हुए। वीडियो में सभी के सभी आया नहीं है। टाइप ऑफ सेंटेंस वीडियो में नहीं है। कंप्लीट द वर्ड चेंज वीडियो में नहीं है। सिमिलरली फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल in which the last letter is double. This question, present participle और past participle क्या मैंने बताया, मगर एक डबल वर्ड वाला वर्ड आपको लिखना है। This topic remaining. Arrange the following words in alphabetical order से वर्ड लिखना है। ये भी टॉपिक बाकी है। Make the sentence of your own. Show the difference. होमोनिमस का दूसरा मीनिंग है होमोफोन। दिस टॉपिक इज रिमेनिंग बट ऑल द टॉपिक कंप्लीट इन द April May lecture, but that time so many students were absent. So we will learn, repeat to next lecture all those topics. Similarly, make a sentence of your own to show the difference homonymous. Next, direct and indirect speech. Change the voice and word register. These for 8 marks. 8 marks in language study and 8 marks in the passage system. Total all those topics depending on 60.
16 मार्क्स। अब ये जो इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक आपने अच्छी तरह समझ लिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो 16 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन आपका क्या हो जा सकता है, परफेक्ट हो जा सकता है। सो राइट डाउन दिस, नाउ वी स्टार्ट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। So now we learn about direct and indirect. What is direct and indirect? We learn about first person, second person and third person. It means first person say to second person, that is called direct. But when first person say to second person about third person, that is indirect. प्रत्यक्ष and अप्रत्यक्ष कथन. There first important thing in direct and indirect. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो बातें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है रिपोर्टेड वर्ब और सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच. Mostly people confuse about direct and indirect because those not solve technically that question step by step. Those not understood what is reported verb and what is reported speech. Reported verb and reported speech. There, this example, Kapil Dev said, I am happy to break world record. This sentence in the direct speech. ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कपिल देव फर्स्ट पर सेकंड पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं हमसे. बट देयर कपिल देव सेड आई एम हैप्पी टू ब्रेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. दिस सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गई. कपिल देव सेड दैट इज फर्स्ट पार्ट and I am happy to break a world record. It is second part. ये second part है. Kapil Dev said this is first part. I am happy to break a world record, second part. Second part in the double inverted comma. देखो second part है double inverted comma. यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो रहता है दैट इज रिपोर्टेड वर्ब. इट मीन्स इन दिस सेंटेंस कपिल देव सेड, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब. एंड आई एम happy to break world record. I am happy to break world record in the inverted comma. ध्यान दो, पहले सेंटेंस इनिशियल. Try to understand a sentence. What is reported verb and what is reported speech. रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये समझ लेना चाहिए. इन द ब्रैकेट सेंटेंस दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, कपिल देव. क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब क्या बोल रहा है, सेड. हाँ, तो रिपोर्टेड वर्ब. दिस सेंटेंस इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, द डिफरेंट चेंजेस इन द रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड वर्ब में होने वाले चेंजेस अलग है, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले चेंजेस अलग है. ये ध्यान में रखो. इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इज इक्वल. ऑल आउट यू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस.
आपने सभी ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। कौन कौन से सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस का जिसको डिटेल नॉलेज है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या करेगा, अच्छी तरह सॉल्व करेगा। दिस 4 सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस अ डिफरेंट चेंजेस इन द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में इन चारों में चेंजेस होते हैं। देखो रिपोर्टेड वर्ब में जब चेंज करने जाएंगे तो ये चारों में चेंज होगा, बट चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले चेंजेस है, दोज इक्वल इन 4, तो चारों में जो रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले जो चेंजेस है वो चेंजेस एक जैसे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वॉट एवर थिंग इंपॉर्टेंट फॉर द चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अभी इसमें चेंजेस क्या करने के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहली इंपॉर्टेंट थिंग्स है, रिमूव ऑल पंक्चुएशन जो पूरे पंक्चुएशन है वो क्या कर देने, निकाल देने। इन्वर्टेड कॉमा है, फुल स्टॉप है, कभी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। पंक्चुएशन है इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच है, पंक्चुएशन नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये इनडायरेक्ट है। तो रिमूव ऑल पंक्चुएशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द चेंज पर्सन, हाँ जो पर्सन होता है, पर्सन मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सिंगुलर हुए, प्लूरल ही सी इट, ये सभी पर्सन है, इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू, थर्ड चेंजेस इन टेंस, तीसरा जो चेंजेस होता है वो टेंस में होता है, ये ध्यान में रखो। भी चेंज करते समय आपको क्या क्या बातें जरूरी, फर्स्ट आपको पहचानना है व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड वर्ब में चारों सेंटेंस में अलग अलग चेंजेस होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में एक ही जैसे चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, चेंज इन पर्सन एंड चेंज इन टेंस, टेंस में इसमें चेंज होती है। अभी चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट, कंटिन्यू चेंज इनटू कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट इनटू परफेक्ट पास्ट, यानी प्रेजेंट टेंस का चेंजेस किस में होता है, पास्ट टेंस में। इतना अगर आप ध्यान देंगे 70% बच्चों को ये प्रेजेंट का पास्ट में चेंजेस, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट, ये सभी बातें क्या नहीं रहती है, ध्यान में नहीं रहते। इसलिए मैं अभी आपको लिख के देने वाला हूँ व्हाट एवर वर्ड चेंजेस, हाँ कौन कौन से चेंज इसमें रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले, ये मैं आपको लिख के, बट रियलाइज दैट इज रिमूव ऑल पंक्चुएशन व्हेन यू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय सभी पंक्चुएशन क्या करने हैं, निकाल देने हैं। चेंज द पर्सन, हाँ जो पर्सन है, आई है, अभी समझ लो यहाँ पे आई है, ये पर्सन है, देखो चेंज द पर्सन, अभी यहाँ पे आई है, तो ये आई का क्या हो जाएगा, कपिल देव, हुज कपिल देव, कपिल देव नॉट सी, कपिल देव इज ही, तो यहाँ पे ही आएगा। देयर इज अ टेंस, आई एम इज अ प्रेजेंट टेंस, आई एम क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो आई एम का क्या होगा, वाज होगा, पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू, जैसे का वैसा। जो होने वाले चेंजेस है वो टेंस, जो चेंजेस होने वाले वो किस में होते हैं, जो एक्सुलरी वर्ड होते हैं। देखो मैंने पहले बताया मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब रहते हैं, मगर यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं
वो चेंजेस खाली किस में होते हैं, एक्चुअली मेन वर्ब में नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे कपिल देव, अभी सेंटेंस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का बनाते समय कपिल देव सेड दैट, हम लेने वाले तो आई यहाँ पे, तो आई का क्या होगा ही, एम का क्या होगा वॉज, बाकी सेंटेंस जैसे। एंड रिमूव, ये तीन बातें जरूरी। पहला रिमूव ऑल पंक्चुएशन, सेकंड चेंज द पर्सन, ये पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अभी नाउ ही सी इट हो सकता है। एंड टेंस वी लर्न डिटेल अबाउट इट इन प्रीवियस लेक्चर व्हेन आई टीच टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। देखो मैंने टेंस और पार्ट इसलिए पहले ही बोला था, हाँ टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच जब तक आप समझ नहीं लेती तब तक बाकी का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। दैट इज चेंजेस, राइट डाउन, यस राइटिंग। So we learn about what is direct and indirect. There are two kind, reported verb and reported speech. रिपोर्टेड वर्ब में चारों सेंटेंस में अलग अलग चेंजेस होते हैं, मगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन सा भी हो वही चेंजेस होते हैं। मैंने क्या बताया, फर्स्ट रिमूव ऑल पंक्चुएशन, चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अभी देखो यहाँ पे ये जो चेंजेस होने वाले मैंने पहले ही बताया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में अलग अलग चेंजेस होते हैं according to the type of sentence, but in reported speech is a similar changes. Similar changes mean first changes मैंने क्या कहा, remove all punctuation। सेंटेंस में जितने भी पंचुएशन है, कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, फुल स्टॉप है, सभी लिखने का नहीं, रिमूव निकाल देने का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड चेंजेस इन अ टेंस, दूसरा चेंजेस होता है चेंजेस इन टेंस। टेंस में चेंज, टेंस में क्या क्या चेंजेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मेक अ सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट बिकम कंटिन्यू पास्ट, यानी प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट होता है। सो देयर वो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए व्हाट एवर चेंजेस एम एंड इज अगर होगा तो उसका वाज होता है, व्हाट इज चेंजेस, एम एंड इज चेंज इनटू वाज। सेंटेंस के अंदर कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड का हो, एम और इज में वाज होता है। आर अगर होगा तो वेयर, हैव और हैज, हैव और हैज होगा तो उसका हैड होता है, क्योंकि एम और इज का, एम इज अ प्रेजेंट टेंस, वाज इज अ पास्ट टेंस, आर इज अ प्रेजेंट टेंस, वेयर इज अ पास्ट टेंस, have and has is a present tense, had is a past tense, have और has का क्या होता है, had होता है। do and does is a present tense, do and does क्या दिखाते हैं, present tense, it change into did, past tense। don't अगर होगा तो not to या didn't, दोनों में से एक, not to ध्यान में नहीं रहेगा तो खाली आपको didn't ध्यान में, didn't होगा तो hadn't, जो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, देखो टेंस में क्या चेंजेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सो देयर डिडंट रहेगा तो हैडंट, मस्ट रहता है कभी, मस्ट का हैड टू, ये ध्यान में रखो, मस्ट का मस्टर्ड नहीं या मस्टेन नहीं, होता है हैड टू। वीड और शॉल हो गए तो दोनों का वुड, बिकॉज दिस इज पास्ट फॉर्म, ये भूतकाल है, वुड इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ शॉल और व्हील, शॉल और व्हील का पास्ट फॉर्म वुड है। कैन होगा तो कुड, कुड इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, मे होगा तो माइट, माइट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ मे। दैट इज चेंजेस इन टेंस। ये कौन सा चेंजेस है, टेंस में होने वाला चेंजेस। नाउ चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन, पुरुष वाचक सर्वनाम, मैंने पहले पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आई और यू दोनों में से कोई भी होगा डायरेक्ट में, ही सी इट, ही सी इट मतलब अगर बोलने वाला ही है तो ही आएगा,
बोलने वाली सी है, फीमेल है तो सी आएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे वी चेंज इनटू दे, मी चेंज इनटू हिम एंड हर, ये ध्यान में रखो, हिम और हर, मी, हिम एंड हर, अस चेंज इनटू देम, यूर और माई, हिज एंड हर। देखो इस दोनों में हर है, मगर यहाँ पे खाली हिम और हिज, ये चेंज है। यूर होगा और माई होगा किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो यहाँ पे हिज और हर होता है। आवर होगा तो देयर, टुडे होगा तो दैट डे, यस्टरडे होगा तो द डे बिफोर, और दूसरा है प्रीवियस डे भी बोलते हैं। क्या है, प्रीवियस डे भी आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बिफोर होगा तो एगो, और नाउ होगा तो देन। दैट इज चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो ब्रैकेट के अंदर का सेंटेंस है उसमें ये चेंजेस, सेंटेंस कौन सा भी हो, असर्टिव हो, इंपेरेटिव हो, ये चेंजेस ऐसे ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट एवर चेंजेस इन रिपोर्टेड वर्ब। अभी ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले चेंजेस मैंने बताए, अभी रिपोर्टेड वर्ब के अंदर होने वाले चेंजेस। राइट डाउन। सो देयर इज 4 रूल फॉर 4 सेंटेंस। 4 सेंटेंस के लिए मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, वो ध्यान में रखने का। दैट इज चेंजेस इन रिपोर्टेड वर्ब। ये रिपोर्टेड वर्ब में होने वाले चेंजेस है, जो ब्रैकेट में नहीं है उस सेंटेंस के बारे में। दिस सेंटेंस, अब ये सेंटेंस है, कपिल देव सेड आई एम हैप्पी टू ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड, देयर द रूल नंबर फर्स्ट, इफ इन द सेंटेंस खाली सेड दैट होगा, अगर सेंटेंस के अंदर सेड टू होगा, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। सेंटेंस इफ इन द सेंटेंस सेड टू होगा, सेंटेंस के अंदर अगर सेड टू होगा तो टोल्ड दैट बनता है। दिस रूल फॉर असर्टिव सेंटेंस। ये जो रूल्स है, ये रूल्स किसके लिए है, असर्टिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए है, असर्टिव। इफ सेड टू इन द डायरेक्ट, राइट टोल्ड दैट इनडायरेक्ट। और खाली सेड होगा, ओनली सेड, दैट राइट दैट। फॉर एग्जाम्पल, देयर सेंटेंस, कपिल देव सेड I am happy to break a world record. To right answer, कपिल देव, अब यहाँ पे खाली सेड है, ओनली सेड, कुछ भी नहीं है, तो राइट कपिल देव सेड दैट। तो यहाँ पे खाली सेड है तो सेड दैट। कपिल देव सेड दैट, रिमूव पंचुएशन, ये जो पंचुएशन से, वो पंचुएशन क्या करना है, निकाल देना है। आई मीन्स कौन, आई मीन्स कपिल देव, मीन्स ही। आई का क्या होगा, ही। कपिल देव इज ही, मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी। ही, एम है तो उसका क्या किया, वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे का वैसा, सेम एज यूजुअल। हैप्पी टू ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखो क्या क्या चेंजेस करने हैं, 3 चेंजेस। फर्स्ट, रिमूव ऑल पंचुएशन, पूरे पंचुएशन, मैंने किधर कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं दिया। सेकंड, चेंज इनटू टेंस, टेंस चेंज हुआ, एम का क्या हुआ, वाज हुआ। चेंज इनटू पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आई का क्या हुआ, ही हुआ, दैट इज चेंजेस। और रूल नंबर फर्स्ट, दिस रूल विच दिस सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार पढ़ा है। असर्टिव सेंटेंस एज यस प्लस वी। असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहता है, बाद में वर्ब रहता है, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। एंड सो दिस रूल फॉर द असर्टिव सेंटेंस, सेड टू अगर होगा तो टोल्ड दैट यूज करते हैं, और खाली सेड होगा तो सेड दैट यूज करते, दैट यूज करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस,
मदर सेड टू राजू, मदर सेड टू राजू यू कैन गो। अभी यहाँ पे दिस सेंटेंस क्यों है? मदर देयर इज अ सेड टू। अभी देखो यहाँ पे सेड टू है, सेड टू की जगह पे क्या करने का है? टोल्ड द डैट लेने का है। मदर टोल्ड राजू, हाँ देखो देयर डैट डूइंग वर्क ऑफ अ कनेक्टिव। मदर टोल्ड राजू दैट, दैट यू मीन्स राजू, राजू कौन है? ही will go. Remove all punctuation. That type of changes for the rule number first. That doing a work of, अगर that किसका है? ये काम करता है that doing a work of connected and is joined, sentence join करने का काम करता है। राजू told that he could go to, whatever changes. First important thing, there is a set to, यहाँ पे set to है इसलिए क्या लिया? told लिए। राजू that he, their changes in personal pronoun could go. The rule number first is completed. Write down. Now we learn about rule number second. देखो पहला जो रूल बताया मैंने किसके बारे में बताया? एसरेटिव सेंटेंस के बारे में। एसरेटिव सेंटेंस में क्या बताया? सेड टू होगा टोल्ड दैट रहता है, और खाली सेड होगा तो सेड दैट रहता है। नाउ वी लर्न अबाउट अ सेकंड, द इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, थ्रेट। इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, एडवाइस होती है, थ्रेट। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंपेरेटिव। जो इंपेरेटिव सेंटेंस के मुताबिक वहां पे क्या होता है? चेंज होता है। नाउ देयर गिवन सेंटेंस, द मैन सेड टू मी प्लीज गिव मी अ बुक। अभी पहले रूल में मैंने बताया, इन द फर्स्ट रूल, पहले रूल में बताया सेड टू होगा तो टोल्ड दैट यूज करने का। बच्चे लोग डायरेक्ट बोलते हैं सर ने बताया है सेड टू होगा तो क्या यूज करने का? टोल्ड दैट। मगर कहाँ पे यूज करने का? ये सेंटेंस इज अ एसरेटिव। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या है? एसरेटिव है तो टोल्ड दैट यूज करने का। विथ दिस सेंटेंस प्लीज गिव मी अ बुक, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताते समय आपको बताया था एसरेटिव सेंटेंस यस प्लस बी। एसरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से या रिक्वेस्ट, ऑर्डर, उसके प्रकार वर्ब से होती है। हाँ, गिव मी वर्ब से होती है। तो यहाँ पे दिस सेंटेंस इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें वो रूल लेने का नहीं, डोंट सेड टू वाला रूल लेना नहीं, डायरेक्ट। सो दे आर अकॉर्डिंग टू चेंजेस। व्हाट इज दिस प्लीज? प्लीज क्या है? प्लीज ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ट्रीट है, धमकी है, सलाह है। हाँ, रिक्वेस्ट क्या है? तो द मैन सेड टू निकल दे, मैन रिक्वेस्टेड। हाँ, प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट, प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट। हाँ, तो रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी, मी। अभी रिक्वेस्ट वाला वर्ड भी निकल जाएगा प्लीज। टू गिव, बुक, टू गिव बुक। द मैन रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ बुक, गिव अ book. That type of changes. It means in rule number second, changes according to the imperatives. जो imperatives वर्ड रहते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, उसके मुताबिक क्या होता जाता है? चेंजेस। सेकंड सेंटेंस, देयर गिवन ओनली सेड,
यहाँ पे सेड दिया है, आप बोलेंगे सर ने बताया था खाली सेड होगा तो सेड दैट लिखो, मगर किसके लिए बताया? एसरेटिव सेंटेंस के लिए। तो इस एसरेटिव वाई के इंपेरेटिव सेंटेंस आपको किधर ढूंढना है? ये जो ब्रैकेट है डबल इनवर्टेड कॉमा एंड रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ढूंढना है। सो देयर फादर सेड ब्रिंग वाटर राजू। So right, father देते ऑर्डर किसे दिया? राजू को। राजू टू ब्रिंग वाटर। लिसन, ध्यान दो, एसरेटिव सेंटेंस में दैट कनेक्टिव रहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कनेक्टिव रहता है, ध्यान में रखो। टू ब्रिंग, वर्ब के पहले टू लगाने, टू ब्रिंग वाटर, और यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी लेने का नहीं। दैट इज रूल नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। राइट डाउन। सो नाउ वी लर्न अबाउट रूल नंबर 3। तीसरा रूल है, इफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर एक्सक्लामेटरी वॉट एवर चेंजेस, देयर changes is according to situation, but exclaimed with take compulsory according to joy, sorrow, fear, surprise, according to situation. Now they are given sentence. Mother said, alas, my son has failed. What is situation there? Joy. Mother said, sorrow, fear, surprise. What kind of situation? Alas, मेरा बेटा फेल हो गया। मम्मी को खुशी हुई ना? खुशी हुई क्या? नहीं। जॉय हुआ क्या? नहीं। सॉरो, दुख हुआ। सो देयर मदर exclaimed with, देखो एक्सक्लेम्ड, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इन द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम्ड टेक कंपल्सरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड क्या लेने का है? कंपल्सरी लेने का है। क्या लेने का है? कंपल्सरी। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यहां तक आ गया। अलास की जगह पे क्या लिया? सॉरो लिया। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। माई मीन्स कौन? मदर, तो यहाँ पे हर आएगा। हर सन, हैज है तो क्या होता है? हैड फेल्ड, दैट टाइप ऑफ चेंजेस। देखो मैंने चारों सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंज सेम होते, खाली जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें चेंजेस। सेकंड सेंटेंस, अभी दूसरा अगला वाला सेंटेंस, बॉयज सेड उर्रा, वी वॉन द मैच, उर्रा। व्हाट इज इंडिकेट हुर्रा? हुर्रा, व्हाट इज इंडिकेट हुर्रा? सॉरो, फियर, सरप्राइज और जॉय। हुर्रा क्या इन एक्सप्लेन कर रहा है? दैट वर्ड हुर्रा, जॉय, वी own the match. It means boys same निकल जाए। boys exclaimed with joy, यहाँ तक लिख लिया। boys exclaimed with joy। अभी we क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। we का क्या होगा? दे। अभी लिख के दिया मैंने, दे ओन। आगे का सेंटेंस जैसे का वैसा, द मैच। दैट टाइप ऑफ चेंजेस इन द सेंटेंस नंबर 3। राइट डाउन। लास्ट, आखिरी वाला रूल नंबर 4, जो रूल नंबर है 4, इफ सेंटेंस इन द इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन,
व्हाट एवर चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज WH वर्ड। पहली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है ये WH वर्ड से क्या होती है, स्टार्ट होती है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड एंड सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ यस नो क्वेश्चन। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। Yes no question in a sentence which beginning with auxiliary verb that is called the yes no question। जिनका आंसर yes और no होता है। auxiliary verb से जिस क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है उसका आंसर क्या होता है, yes और no से। Do you like tea? Yes I do। No I don't। यानी उसका आंसर yes और क्या होता है, no होता है। तो whatever changes in the interrogative sentence आस्क राइट रिप्लेस ऑफ द सेड। सेड के जगह पे आस्क यूज करना है इफ देयर WH वर्ड एंड WH वर्ड इज अ कनेक्टेड। सिमिलरली इन यस नो क्वेश्चन राइट आस्क रिप्लेस ऑफ द सेड। सेड के जगह पे यहाँ पे भी आस्क लिखना है बट देयर यूज ऑफ इफ फॉर द कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल they are given first example, the man said who are you? Asked me who, and that sentence convert into the assertive sentence। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट करनी है, assertive sentence। asked who, यू का क्या होगा आर यहाँ पे एम। अभी आप बोलेंगे सर आर का तो आपने क्या बोला था, वेयर बोला था, बट देयर चेंज सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, चेंज, इसलिए वहां पे क्या है आई का एम आया। सेकंड सेंटेंस देयर इज सेकंड सेंटेंस there the teacher asked किसे का, राजू। राजू कौन है, ही going। Similarly there the man asked me who I am। अभी देखो यहाँ पे वॉट एवर थिंग आस्क लिखना है सेड की जगह पे। फर्स्ट चेंजेस। सेकंड WH वर्ड कनेक्टेड। WH वर्ड क्या है, कनेक्टेड। एंड दिस सेंटेंस चेंज इनटू द assertive सेंटेंस। ये सेंटेंस को क्या करना है, assertive में क्या करना है, चेंज करना है। नेक्स्ट द टीचर सेड विल यू प्ले राजू। देयर द टीचर said will you play means that is yes no question because will is a auxiliary verb। will क्या है, auxiliary verb है, इसलिए यहाँ पे auxiliary verb होने के कारण इसका आंसर क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड राजू। अभी यहाँ पे हमने कनेक्टिव WH वर्ड लिया तो यहाँ पे क्या लिखने का है, इफ। इफ यू का क्या होगा, राजू का ही, और विल का वुड, और प्ले जैसे का इस प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चारों में क्या होते हैं, चेंजेस होता है। मैंने इसलिए पहले बताया आपको टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
और पहले मैंने इन द अप्रैल मंथ, अप्रैल के महीने में बहुत डिटेल्स बताया मैंने टेंस के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और सेंटेंस के बारे में, इसलिए पहले वो टॉपिक बता दिए। और भी ये टॉपिक, हाँ, ओल्ड ग्रामर डिपेंडिंग ऑन टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके ऊपर पूरा ग्रामर का ईच एंड एवरी टॉपिक क्या है डिपेंडिंग, राइट डाउन।